Good morning all the students. I am Shivam Saxena, your IT teacher. Today we will start our new chapter. It has been taken from Unit 3 and the name of this chapter is Getting Started with a Word Processor Application. In this chapter we will discuss about the software that is called a word processor software. Any of the software which is basically designed for making any types of the correction, formatting, editing, storage of data, manipulation of data, printing of data is known as a word processing software. Under the word processing software, you can do any types of the work that you can do with a letter. You can type a letter, you can type a memo, you can type any application, you can type any other things. All basically the typing work is being done in this application only. Apart from the typing work, you can also do some other tasks like format the text, change the color of the text and other things too. Many more things we can do along with this. Okay? Generally, we will discuss about the specific feature of that. In the market, you can see a number of different kinds of the word processor softwares are available. But out of all them, the most prominent or a famous word processor software is MS Word. It belongs to the MS Office family. So one by one we will start and first we'll discuss about the feature. So as we know that it's a very much important software as it is a part of the MS Office family and all kinds of the writing and typing works we can simply do in this application only. So gradually we'll learn that what exactly we can do. These are the features of that. Number one, like that, ease and speed. The first thing, like or some other word processor software is also being there, जैसे word star word processor software होता है and wordpad is also a type of the word processor software. ऐसे आप और भी टाइप का जैसे writer is also a word processor software, but apart from this softwares, its softwares is very much high and speedy. यानी ये एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो इजी एंड फास्ट मेथड ऑफ टाइपिंग को फॉलो अप करता है. आप क्विकली टाइप फास्ट कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से टाइप कर सकते हैं. ये आपके इंस्ट्रक्शन को जनरली स्टोर करता है और उसको प्रिंट करने की कोशिश करता है. इसके अलावा एक इसके अंदर स्पेशलिटी ये होती है कि ये आपको टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड्स करता है जिसमें जो आपको रेडीमेड्स मैसेजेस और फॉर्मेट्स बने हुए मिल जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एडिटिंग फीचर्स. एडिटिंग का मतलब होता है मेकिंग करेक्शंस इन द डेटा. फॉर एन एग्जांपल व्हाटसोएवर यू हैव रिटन इन अ लेटर. आपने कोई भी एक लेटर में एक सपोज दैट एक हार्ड कॉपी है, एक आपके पास लिखा हुआ लेटर है और उस लेटर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या ग्रामेटिकल एरर हो गया या फिर एनीथिंग एल्स इट हैज़ बीन डन ओवर दैट. सो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेक इट चेंज. आप उस लेटर जो आपने हाथ से लिखा हुआ लेटर आपके पास है ये एप्लीकेशन, तो उसको चेंज करने के लिए आप वाइट ने अप्लाई करते हो और फिर उसके ऊपर दोबारा लिख कर देते हो. तो दिस इज़ कॉल्ड एडिटिंग. एडिटिंग मीन्स मेकिंग करेक्शंस ऑन द रिटन डेटा. So it is also very much important feature on that without making any types of applying whitener and other things, it enable us to make corrections on the data. आप जैसा चाहें वैसा आप डेटा में करेक्शन कर सकते हैं और जब चाहें उतना डेटा कर सकते हैं. मल्टीपल कॉपीज़ आप एक से डेटा को बना सकते हो. इस कॉपी कट कॉपी पेस्ट एडिटिंग का फीचर्स है. सम टाइम इफ़ यू वांट टू डिलीट यू कैन सिंपली डिलीट दैट पर्टिकुलर पोर्शन टू. ठीक है. तो ये आप कर सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग. देखिए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग. एडिटिंग मीन्स आप पुराने कंटेंट को रिमूव करोगे, न्यू कंटेंट को ऐड करोगे, उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे, लेकिन कंटेंट का जो फेस है उसको चेंज नहीं करोगे. मीन्स हाउ द कंटेंट लुक्स, दिस इज़ फॉर्मेटिंग. कि आपका जो कंटेंट है वो कैसा डिस्प्ले होगा, कैसा प्रेजेंट होगा, वो फॉर्मेटिंग होती है. तो फॉर्मेटिंग लाइक सपोज कहीं बोल्ड कंटेंट है, कभी इटैलिक कंटेंट है, कभी अंडरलाइंड बेस्ड कंटेंट है. ठीक है. कोई कंटेंट है इसका ब्लू कलर है, कोई लाइन लिखी है इसका ग्रीन कलर है, कोई लाइन है जो स्ट्राइक आउट है. ठीक है. अलग अलग स्टाइल में लिखी है. तो फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, these all are goes in this particular category. So it enable us to do all these kinds of thing in very fast and speedy manner. Next is storage capabilities and features. enormous storage, जितना चाहे उतना आप कंटेंट स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर. ग्राफिक फीचर्स, अगर आप चाहें तो कंटेंट के साथ अलॉन्ग विथ यू कैन आल्सो प्रिंट अ पिक्चर्स टू. जैसे मुझे पिक्चर को एक्सप्लेन करना है तो मैं ग्राफिक के फॉर्म में पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकता हूँ, किसी चार्ट को इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई ड्राइंग्स को इंसर्ट कर सकता हूँ,
कोई मेरी प्री स्टोर्ड पिक्चर है, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है. सो ऑन अ वन साइड वी कैन पेस्ट अ पिक्चर एंड राइट साइड वी कैन राइट द कंटेंट और टेक्स्ट टू. नेक्स्ट आप सकते हो प्रिंटिंग फीचर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. टू कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी द प्रिंटिंग ऑप्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बनाना है तो प्रिंटिंग फीचर्स है कि आप पूरा फॉर्मेट करिए, एडिट करिए और फाइनल टेक्स्ट में उसको प्रीव्यू करिए. और प्रीव्यू के केसेस के बाद अगर आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं. दिस फीचर्स इज़ ऑल्सो अवेलेबल विद MS Word. नेक्स्ट है आपका वोकेबुलरी एंड स्पेल चेक फीचर्स. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मैनी टाइम इट हैपन्स दैट वी हैव रिटन अ रॉन्ग स्पेलिंग्स. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रॉन्ग स्पेलिंग लिख देते हैं, या हो सकता है किसी को किसी पर्टिकुलर स्पेलिंग ना पता हो, या एट द टाइम ऑफ द टाइपिंग ही और शी हैज़ मेड अ मिस्टेक इन द स्पेलिंग एंड ग्रामर. So this is one of the most important feature of MS Word, that it show with underlined by green wavy और red wavy line. एक वेव जैसी लाइन नज़र आएगी टेक्स्ट के नीचे. If there is a spelling mistake you will get a red wavy line down of the content, and if there is a spelling mistake then this, and if there is a grammatical mistake then there is a line that is known as green colored line. ठीक है, तो उससे क्या है, आप ग्रीन कलर्ड की लाइन अगर नज़र आ रही है या रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है तो यू कैन रिव्यू दिस थिंग्स कि देयर माइट बी अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द टेक्स्ट. स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड लाइन है, और ग्रामेटिकल एरर है तो ग्रीन लाइन है. तो वंस आप प्रिंट करने से पहले देख सकते हो कि कहीं पे ग्रामेटिकल एरर है या नहीं. एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो गेट द सजेशन बाय जस्ट सिंपली राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन. आप उस लाइन पे राइट क्लिक करिए, you will get the suggestions ki it might be that like that. So this is I think one most important feature. Next is mail merge feature. Yeah, very important feature. Under this features you can connect send the one letters to the multiple people. जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए, बहुत सारे में केसेस ये होता है कि एक सेम लेटर्स को मुझे बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल करना होता है, तो उसके लिए हम लोग मेल मर्ज का यूज़ करते हैं. जो भी मेलिंग होगी उसकी एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के फीचर्स आपको मिलेगा, और उसके बाद आप एक लेटर्स में मेल मर्ज को मेल के साथ मर्ज कर सकते हो और सीधे सेंड कर दी. तो जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उन सब पर ऑटोमेटिकली सेंड होता चला जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट आता है OLE फीचर, ऑब्जेक्ट लिंक्ड एम्बेडेड. दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एम्बेडेड एक्चुअली होता क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अदर देन दिस सॉफ्टवेयर इज स्टोर इन योर सिस्टम. जैसे MS Word के अलावा और भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में स्टोर होंगे, तो आप उनका डिस्प्ले इस पर पेस्ट कर सकते हो. जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एक्सेल पे वर्क करना है, अ स्मॉल वर्क आई नीड टू डू ऑन एक्सेल, एंड आई डोंट वांट टू ओपन एक्सेल. मुझे एक्सेल के एप्लीकेशंस के फीचर्स सारे चाहिए MS Word में, और आई वांट टू डू द वर्क ऑफ एक्सेल्स ऑन MS Word. सो दैट फीचर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट. आप इस फीचर से आप किसी भी अदर एप्लीकेशन को जो सिस्टम के अंदर स्टोर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और आपके कंप्यूटर में स्टोर है, उसका एक डिस्प्ले आप अपनी स्क्रीन पर पेस्ट कर सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हो. जैसे मान लो मुझे कैलकुलेशन करनी है, कुछ करना है, तो मैं एक्सेल की स्क्रीन को डिस्प्ले कर लूँगा MS Word की स्क्रीन पर. अब MS Word की फुल स्क्रीन होगी, उसी में मिड में OLE स्क्रीन आ जाएगी जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, अदर एप्लीकेशन होगी. उस पर आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो MS Excel के होते हैं, और जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा और फाइल वहाँ पहुँच जाएगी. इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू मेक एनी करेक्शन, आप उस कंटेंट पे डबल क्लिक करेंगे, आप दोबारा उस एप्लीकेशन पे पहुँच जाएंगे. तो दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ओवर दैट. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट MS Word. अब देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे MS Word डेस्कटॉप यूटिलिटी, नोटपैड डेस्कटॉप यूटिलिटी, ओपन सोर्सेस, लिब्रा ऑफिस राइटर्स और गूगल डॉक्स. ये सब जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के टाइप्स हैं. जैसे मान लो MS Word है जो हम लोग के पास हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं. इसके अलावा नोटपैड और वर्डपैड भी होता है, लेकिन वो टेक्स्ट एडिटर होता है, वो इतने सारे फीचर्स हमको नहीं देता है. ओपन ऑफिस जनरली लाइनक्स का होता है जो फ्रीवेयर है. उसमें ओपन ऑफिस में या लिब्रा ऑफिस में लमसम सेम फीचर्स होते हैं. और गूगल और डॉक्स जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी MS Word के जैसे ही फीचर्स. तो ये सब वर्ड प्रोसेसिंग के हैं जिसमें जनरल ये सारे फीचर्स होंगे दैट वी हैव अर्लियर डिस्कस. ठीक है, सो दिस वाज पोर्शन वी हैव डिस्कस टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द फर्दर पोर्शन. थैंक यू वेरी मच.